ایک دلچسپ کہانی جس میں بچوں کی ہر وہ چیز ہے جس سے بچوں کی محبت ہوتی ہے اور دیکھ بھال اور اشتراک کے بارے میں ایک اہم سبق جو ہر بچے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عرف میرے دل سے، میرے پاس آپ کے لیے ایک کہانی ہے۔ غیر منقولہ دولت اور ایک جوان لڑکے کی کہانی ہے جس نے انہیں پایا۔ اور میں کون ہوں؟ آپ پوچھتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں ریڈر گروہ، بحری فضا اور بحری جہاز بحیرہ کا کپتان، 7 سمندروں میں ہمیشہ سفر کرنے والا بہترین جہاز۔ وہ ایک عمدہ برتن تھا، 3 ماسک اور 10 پال نے اسے تیز کر دیا، اور اس کی چیکنا نے اس کو آسانی سے لہروں سے کاٹنے دیا۔ عملہ کھلے سمندروں پر کبھی سفر طے کرنے کے لیے ملاحوں کا بہترین جھنڈا تھا۔ وہ تمام دنیا سے آئے ہوئے بحیرہ احمر پر خدمت کرنے اور دولت میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے صرف خزانہ چھپا لیا تھا اور مجھے خزانے کا نقشہ چھپانے کے لیے ایک محفوظ جگہ ملی، ایک واقف جگہ، ایک ایسی جگہ جہاں ایک جوان لڑکے کی حیثیت سے، اس سے پہلے کہ سمندر نے مجھے خدمت کے لیے بلایا، میں گھر تھا۔ جب ہم نے خزانے کو دفن کرنے کا کام ختم کیا تو ہم نے مشرق کی طرف سے آنے والا طوفان دیکھا۔ یہ ایک بڑی چیز تھی، ہوا چلا رہی تھی، بارش نے ہمیں اپنی ہڈیوں تک بھگا دیا، گرج چمک اٹھی، اور بجلی نے میرے عملے کے بہادر کو خوفزدہ کر دیا۔ جب ہوا تو ہم لانگ بوٹ میں تھے۔ سمندر کا تہا کھلا اور پانی بہنے لگا، پانی چکر لگانے لگا، آہستہ آہستہ پہلے، اور پھر اس وقت تک تیز رفتار اٹھاؤ جب تک کہ ہم بھنور میں نہ ہوں۔ پانی کے گھومنے پھرنے میں دیر نہیں لگتی تھی، لانگ بوٹ میں ہمارے لیے۔ ہم اسے نیچے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جب ہم اس کے بستر سے نیچے چوسنے سے پہلے اس بھنور کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ لڑکا اس کی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ میرے بعد، اسے سینڈی کہتے ہیں، یا دیکھو میں اس کا عظیم الشان عظیم دادا ہوں۔ سینڈی، اس کی ماں کو گھر سے بلایا، تم دن کا کام بھول گئے ہو، یاد رکھنا کہ آپ اٹاری کو صاف کرنے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلتے چلتے سینڈی نے بڑبڑایا، مجھے کام کاج نہیں ہے، لیکن اٹاری صاف کرنا، سالوں میں وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ اندھیرے، گندا، اور مکڑیوں اور دیگر عجیب چیزوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، شاید مکڑیوں کے ساتھ یہاں ایک بھوت یا 2 زندہ رہتے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا۔ میں نے اٹاری کا دروازہ کھلا، ہوشیار رہو، یہ قدرے تاریک ہے اور بہت ساری چیزیں ابھی پڑی ہیں یا ڈھیروں میں کھڑی ہیں۔ سینڈی کو دیکھتے ہی دیکھتے سینڈ ڈر کی روح نے خود کو سوچا، اس طوفانی رات میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہوگا جب میں نے مجھے اسی کمرے میں خزانے کا نقشہ چھپا دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ آخر یہ مل جائے گا۔ یہ اتنا برا نہیں ہے، سینڈی نے خود سے کہا، یہاں بہت ساری صاف چیزیں ہیں، میں ان تمام مختلف چیزوں کو منتقل اور منظم کرتے ہوئے صاف ہو جاؤں گا۔ ریڈر نے خود سے سوچا، وہ لڑکا سخت محنتی ہے۔ اگر میں کر سکتا تو میں اسے عملہ پر رکھتا۔ وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے یہاں موجود تھا اور وہ تقریباً آلموسٹ ہو چکا ہے۔ صاف کرنے اور منتقل کرنے کے لیے ایک آخری چیز، سینڈی نے زور سے کہا، اگرچہ وہ جانتا تھا، کوئی بھی اسے سننے والا نہیں تھا، میں صرف اس پرانے تنے کو مٹا دوں گا اور اسے وہاں کونے میں سلائڈ کروں گا۔ زبردست! یہ چیز بھاری ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے حرکت دینے سے پہلے ہی اسے خالی کرنا پڑے گا۔ ریڈر نے خود سے سوچا، لڑکا میرے قریب نقشہ قریب آ رہا ہے، اس نے تنے سے بہت ساری چیزیں خالی کر دی ہیں۔ اوہ واہ، سینڈی نے کہا، اس پرانی کتاب کو دیکھو، میں اسے صرف کھولوں گا اور ایک نقشہ، یہ ایک پرانا نقشہ ہے، خزانے کا نقشہ، مجھے یقین نہیں آتا، مجھے ماں کو دکھانا ہے۔ لڑکے نے مجھے نقشہ پایا، آخر میں کوئی مجھے خزانہ مل سکتا ہے اور یقین سے بالاتر امیر ہوتا ہے، ریڈر نے کہا۔
आपको ये कहाँ से मिला? उसके वालिद ने पूछा। ये उस पुरानी किताब में था। मैं उस पुराने तने को अटारी में मुंतकिल नहीं कर सकता था, लिहाजा जब मैंने किताब देखी तो चीजों को निकालना शुरू कर दिया। जब मैंने किताब खोली तो नक्शा खो गया, सैंडी ने जवाब दिया। सांडी एस्मा ने शामिल किया, ये यकीना ओल्ड पुराना है और ये यकीनी तौर पर एक खजाना का नक्शा है, और यहाँ देखो, जो भी उसकी तरफ जाता है वो वो हमारी अमलाक पर दफन है। उसके वालिद ने कहा, उस नवट को पहलू से देखें। उसका कहना है कि मुतलाशी के पास बेहिसाब दौलत होगी और वो एतिकाद से बालातर दौलतमंद होंगे। उस पर सेंट डर नामी किसी ने दस्तखत किए हैं। आइए नक्शा का मुतालिया करें। कल सुबह हम खजाना की तलाश में जा रहे हैं। उसके वालिद ने कहा। यपी, सैंडी ने कहा। अर्ज, ऐसा मालूम होता है कि मुझे खजाना मिलने के करीब है। रीडर ने कहा। सैंडी, आप बीजा ले, माँ नक्शा पढ़ सकती है, और मैं कंपास इस्तेमाल करूँगा। उसके वालिद ने अपने खजाने की तलाश शुरू करने के लिए सहन में जाते हुए कहा। अर्क एम गो को देखो, वो मेरे नक्शे की पैरवी करने में बहुत अच्छे होंगे। यही है। कनवा से मगरिब की वजह से 22 रफ्तारें, शुमाल मशरक की तरफ मुड़ी और 6 रफ्तारें ले, फिर जुनूब की तरफ 11 रफ्तारें। ये मेरे पास खजाना है, रीडर ने कहा। सैंडी के वालिद ने कहा, अगर हम नक्शे की सही पैरवी करते और वाक़ता रेली कोई खजाना होता है, तो हम उसके सबसे ऊपर खड़े होते हैं। मुझे खुदने को मिलता है, सैंडी ने जोश व खरोश से कहा जब उसने सैंडी मिट्टी से बहुत से लोगों का पहला सकोप खत्म किया। अर्फ, वो लड़का चप का पराना बलाक हो, उसकी खुदाई देखो, आप तकरीबा वहाँ लड़के हैं। हमत नहीं हारना, रीडर ने कहा। मैंने कुछ मारा, सैंडी चीखा। ये एक खाना है, ये खजाना है, हमें खजाना मिल गया। मैं इसे बाहर निकाल कर वालिद के हवाले कर दूं। एक पुरानी बाइबल, सैंडी ने मायूसी के साथ कहा। मैंने सोचा था कि नक्शा ने कहा है कि हम यकीन से बालातर दौलतमंद होंगे। प्यारी, उसकी माँ ने कहा। उस किताब के अल्फाज आपको एतिकाद से बालातर दौलत अता करते हैं। माँ, मुझे मालूम है, सैंडी ने जवाब दिया, लेकिन मैं तवक्के कर रहा था कि हेरे, रोबी और सोने के सिक्के मिले, बाइबल नहीं। अर्क, मेरे लड़के, अब आप हमत न हारे। आपने सच्चाई और दौलत को पाया, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ है। आपको अच्छी किताब के लड़के को देखना है, रीडर ने कहा। सैंडी ने कहा, माँ, मुझे बाइबल देखने दो। किसी अजीब व गरीब वजह की वजह से मैं उसका जायजा लेना चाहता हूँ। ये वाकई दिलचस्प है, सैंडी ने कहा, और ये देखो, पहले सिफहे में मुख्तलिफ अल्फाज चुकर लगाए हुए हैं। जबरदस्त। एक खानदानी दरख्त है और उसके अप में एक खत लिखा हुआ है। मुझे देखने दो, उसकी माँ ने कहा। ओह मेरे, इसे देखो। यहाँ एक शाख है जिस पर सैंडी का लेबल लगा हुआ है और उसके ऊपर एक सर्कल के साथ $100 लिखा हुआ है। सैंडी के वालिद ने पूछा, क्या मैं बाइबल देख सकता हूँ? जब मैं एक छोटा लड़का था, आपसे सैंडी से छोटा था, मेरे वालिद ने मुझे बताया कि हमारे पास उस खानदान में समंदरी डाकू है। मुझे उसका मुतालिया करने के लिए कुछ मिनट लगाएं। सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने यही समझा, सैंडी के वालिद ने नरम आवाज में कहा। रीडर एक कज़ाक था, वो आपका अजीम अलशान अजीम दादा भी था। वो ऊंचे समंदरों में महम जोई के लिए रवाना हुआ, बहरी कज़ाक बन गया, और ठीक है, कनबा सिर्फ उसके बारे में भूल गया था। उसने उस बाइबल मैं अपनी कहानी लिखी और इसे खजाने की तरह छपा दिया। उन्होंने कहा कि उस बाइबल को वो जहाज के कप्तान से ले गए जिससे वो आगे नकुल गए और हर रात इसे पढ़ती। जैसे ही उसने पढ़ा, उसने और भी सीखा, और वो मालेदार हो गया। बाइबल में शामिल पैगामात से भरपूर
मैं अपनी कहानी लिखी और इसे खजाने की तरह छपा दिया। उन्होंने कहा कि उस बाइबल को वो जहाज के कप्तान से ले गए जिससे वो आगे नकुल गए और हर रात इसे पढ़ती। जैसे ही उसने पढ़ा, उसने और भी सीखा, और वो उस बाइबल ने इसे बहरे कज़ाब की हैसियत से अपनी जिंदगी के दौरान होने वाली तमाम गलतियों पर तौबा करना सिखाया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि फिर उसने सारा खजाना, सोना, चांदी और ज़ेवरात लिए और इसे दफन कर दिया। वो पूछता है कि जिसने भी इसे वसूल किया दूसरा खजाना उसमें शरीक होना चाहिए, नेक अमल करना, और बाइबल के कहने से वही करना चाहिए। वो सोचता है कि अगर ये हो गया तो उसकी रूह को सुकून मिलेगा। वाह, सैंडी ने कहा, काफी कहानी है। सैंडी की वालिदा ने कहा, कर दिया। वो पूछता है कि जिसने भी इसे वसूल किया दूसरा खजाना उसमें शरीक होना चाहिए, नेक अमल करना, और बाइबल के कहने से वही करना चाहिए। वो सोचता है कि अगर ये हो गया तो उसकी रूह को सुकून मिलेगा। वाह, सैंडी के वालिद ने कहा, और भी है। और सैंडी, आप बीलचा लेना चाहते हो? जब मैंने एक को अपने उर्द गिर्द दायरे के साथ देखा तो मुझे याद आया कि सैंडी ने पहले सिफहे पर अल्फाज के चुकर लगाने के बारे में किया कहा था। ये दूसरे खजाने का एक कोड है। रिक्टर उसका कज़ाकी नाम था। पहले सिफहे पर 10 हर्फ और 10 अल्फाज चुकर लगाए। यहाँ खजाने की कलीद है। एक ने खुदाई शुरू करें, बहुत नीचे खुदी और वसूल करे मजीद। खजाना है जो खुदा हमने खुदा है उसमें और गहरा दफन है। अर्क, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली मेरी मदद करती है। माँ, मैं जितना हो सके खुद रहा हूँ। माँ, सैंडी ने कहा, उन तमाम रीडरों को देखो, और जब वो टूटते हैं तो उनमें एक अमन का डोवा होता है। मैंने कुछ बड़ा मारा। ये लड़का है, उस सेने को खुदू। चलो भाई, आप और आपके वालिद इसे सुराख से निकाल सकते हैं। लड़के चलो, उसमें वापस डाल दो। पेश, बस अब इसे खोली, रीडर ने कहा। सैंडी की मां ने कफर पर कहा, उसको देखो, एक हफ्ते पे खजाना। अर्क, और अब लड़का सही काम करना आप पर मुनहसिर है। रीडर ने कहा। उसके वालिद ने कहा, ये आप पर मुनहसिर है बेटा, ये आपका खजाना है। सैंडी ने सीधा कहा, मैं दो चीजें चाहता हूँ। बाइबल तो मैं ये सीख सकती हूँ कि मेरे अजीम दादा ने क्या सीखा था, और सोने की रीत से मुझे उसकी याद रखने में मदद मिलेगी। माँ को वो ज़ेवरात का हार होना चाहिए, ये उस पर अच्छा लगेगा। वालिद, आपको कुछ सोना लेकर फरोख्त करने की जरूरत है ताकि कुछ बिल अदा करने में मदद मिले। मेरे ख्याल में हमें बाकी सब चर्च को देना चाहिए। वो जानते हैं कि महताज कौन है और मुझे लगता है कि उससे बहुत से लोगों को तवील अरसे तक मदद मिलेगी। उसकी मां ने कहा, मुझे लगता है कि आप सैंडी का फैसला कर रहे हैं। क्या वालिद? सैंडी ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा सैंडी, उसके वालिद ने जवाब दिया। सैंडी ने फिर कहा, मैंने सोचा कि मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अखलाकी तौर पर वसूल करने से कहीं ज्यादा देना बेहतर होता है, और जो कुछ कम खुशकिस्मत लोगों के साथ हो सकता है इसे बांटना हमेशा बेहतर होता है।